Hello students, today we are going to start another topic that is your respiration. So सबसे पहले हम बात करते हैं respiration है क्या. If we talk about respiration, then it is the process of oxidative breakdown of food to release energy in the form of ATP. और रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और हम ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. ठीक है ना, फूड से एनर्जी को रिलीज करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूज टू रेस्पिरेशन. और इट्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस मेनली ग्लूकोज इन द सेल resulting in the release of carbon dioxide, water and energy. All of you know that glucose किससे बनता है? CO2 and water से. जो हम स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस में, CO2 combine with water in presence of sunlight, that is chlorophyll, and produce glucose along with oxygen. But when the breakdown of glucose takes place in presence of O2, then CO2, water along with ATP is produced, and this ATP is utilized by the cell to perform different types of function. So respiration is the process of oxidative breakdown of food to release energy in the form of ATP, and this energy is used by the cell to perform different functions. If we talk about in our ecosystem, दिस इज द फोटोसिंथेसिस. देखो जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक. फोटोसिंथेसिस में दो सिंपल दैट इज सबस्ट्रेट कंबाइन होते हैं, दैट इज CO2 कंबाइन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड मेनली इन where in chloroplast give rise to the formation of what organic molecule, and this organic molecule is your glucose along with O2, that is O2 oxygen. But in mitochondria, that is during respiration, the organic molecule that is glucose breaks down to produce ATP along with CO2 and water, and this ATP is used by the cell for performing different function. Got it? सो रेस्पिरेशन एंड अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन इज अ catabolic, whereas photosynthesis is an anabolic process. Now if we talk about the burning of the food, oxygen in presence of sugar, we use term burning, and what it produces, that is CO2, water and energy. ठीक है, so these are different type of equation. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट द ब्रीथिंग एंड व्हाट रेस्पिरेशन इज. सो जब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग है क्या? देखो ब्रीथिंग सिंपल मतलब है इनहेल एंड एक्सहेल गैसेस का. सो इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2, वी यूज टर्म ब्रीथिंग. ब्रीथिंग को कहा जाता है आल्सो नोन एज दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मसल एंड स्केलेटन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द गैसेस एक्सचेंज. जनरली हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स. ओके, तो जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं तो व्हाट वी कैन डू, वी इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2. So the movement of air from nostrils up to the lungs and from lungs to nostril, that is from external environment to the lungs and from lungs to again external environment, that is उसे हम बोलेंगे wisdom breathing. लेकिन what the respiration is, respiration की बात करें, जब हमारे lungs से gases जो हैं डिफ्यूज होकर चल जाती हैं ब्लड में, मेनली ऑक्सीजन, तो उसके बाद चल जाते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, where the breakdown of food takes place, उसे हम बोलते हैं use term respiration. So respiration takes place inside the cell, mainly in the mitochondria, and it causes the oxidation of simple food to release energy. ठीक है, सो ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. सो ब्रीथिंग इज, इसे भी कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें आल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. Now next we talk about types of cellular respiration. Respiration की बात करें तो there are mainly two types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic मतलब in presence of oxygen. So reaction takes place in presence of oxygen, उसे हम बोलेंगे that is aerobic respiration. And इसमें mainly these breakdown takes place in presence of enzymes which act as a catalyst. Catalyst in the sense they increase or decreases the rate of reaction without undergoing any change in them. सो मेन सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होता है सेल में वो है आपका ग्लूकोज. सो है that is this is your glucose when combined with oxygen, in presence of oxygen and enzyme breaks down into CO2, water, and साथ में एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है.
क्योंकि जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सब लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये प्रोसेस, सो इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, और विच इज़ मेनली यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल. Now, what is the difference between now and that is burning and respiration? तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट dissimilarities. तो both involve oxidative process in the sense both process takes place in presence of oxygen. Both require the use of oxygen in food and produce the same product of carbon dioxide and water. दोनों में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है CO2 and water. बोथ डायरेक्शन रिलीज एनर्जी, और दोनों डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस की बात करते हैं तो टेक्स प्लेस इन एयर और ऑक्सीजन, ठीक है ना, टेक्स प्लेस इन सेल. तो न्यूलिस बात है, टेक्स प्लेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर, सॉरी एयर और ऑक्सीजन, और ये होता है ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में लेकिन सेल के अंदर. इट इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें इट कंप्लीट्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, विच स्टडी क्रैब साइकिल्स, तो नंबर ऑफ स्टेप में परफॉर्म होता है. बर्निंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन में इट इज़ एंजाइमेटिक प्रोसेस कंट्रोल बाय डिफरेंट एंजाइम. बर्निंग की बात करें तो बर्निंग में जो एनर्जी है इट इज़ रिलीज्ड विगरस एंड नॉट अंडर कंट्रोल, मतलब बर्निंग में एनर्जी एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें तो एनर्जी जो है वो स्लोअर एंड स्टेप वाइज प्रोसेस है एंड अंडर कंट्रोल रहता है, और एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. अ फ्लेम कैन रिजल्ट. तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जिसकी वजह से फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज एटीपी. क्लियर? सो एटीपी की बात करें तो इट इज मेनली रिलीज्ड एज हीट एंड एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेल. ओके, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सम एटीपी शुड बी कंज्यूम्ड फर्स्ट बिफोर. तो न्यूट्रल सी बात है, एटीपी की बात करें एक्टिव प्रोसेस है. एटीपी की फॉर्मेशन के लिए एटीपी ही यूटिलाइज होता है, और एटीपी की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. सो हेयर we have this ADP, that is adenosine diphosphate, when combined with inorganic phosphate plus energy. So what we get? We get ATP, which is known as energy currency of the cell. तो ATP जो है ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, while ADP इज द लो एनर्जी कंपाउंड. क्योंकि देखो ना, ATP और ADP की बात करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जब एडेनोसिन दैट इज बेस से नाइट्रोजन फेस से फॉस्फेट रिलीज होते हैं, तो ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड बिटवीन एडेनोसिन एंड फॉस्फेट ग्रुप, तो एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती है. सो एटीपी कैन ओनली स्टोर एनर्जी फॉर अ शॉर्ट पीरियड. एटीपी इज मेड इनसाइड ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया विच इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. नाउ वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की बात करें मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े रेस्पिरेशन के लिए तो यूज टर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेयर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड और नीडेड. और मेनली ये जो शो करते हैं सर्टन बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मसल सेल और एग्जाम्पल जो परफॉर्म करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें से एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम एग्जांपल लेंगे. आप सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो इट इज़ काज्ड बाय यीस्ट एंड विदाउट ऑक्सीजन. तो है ग्लूकोज यहाँ पर एंजाइम एक्ट करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे CO2 एंड साथ में इथेनॉल प्लस एनर्जी. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एनारोबिकली इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू, सो वी कैन से दैट जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन. एंड मेनली अगर हम बात करें तो 38 ATP molecule are produced during aerobic respiration and only 2 ATP molecule are produced during anaerobic respiration. So these are certain we talk about uh, differences. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एरोबिक में लार्ज, एनारोबिक में स्मॉल. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यहाँ पर पार्शियल और इनकम्प्लीट. और कहाँ पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन? इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, whereas anaerobic respiration occurs in cytoplasm of the cell. Now we talk about lactic acid fermentation. It is also an anaerobic process. Lactic acid fermentation की बात करें तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्टीरियस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है. और जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट जो है एकदम से इंक्रीज हो जाता है. जब आप ज़्यादा रनिंग करो
तो आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करो, आपका ब्रीथिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उस टाइम सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब मिलेगी, जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी, और फूड की ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हमारे मसल सेल्स में व्हाट वी हैव, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, देन द मसल सेल स्विच्ड टू अनदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से फूड की पार्शियल ब्रेकडाउन होती है। एज अ रिजल्ट जो ग्लूकोज है वो टूट जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड में टूटने की वजह से वी फील मसल क्रैम्प्स एंड मसल फैटिक। ओके, सो यहाँ पर ये शो बोला हुआ है कि पीपल कैन नॉट सप्लाई इनफ ऑक्सीजन टू मसल इवन दे ब्रीथ फास्टर एंड डीपर, जिसकी वजह से मसल नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एनारोबिकली बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड, and lactic acid will cause muscle fatigue and muscle cramps if they are allowed to accumulate. So it's all about your basic concept about respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration.